Rahim. Today we will study develop schedule, which is part of project time management. In develop schedule is the process of analyzing activities, sequence, duration, resource requirement and schedule constraint to create the project schedule. If you remember, first official document in project time management is to produce a schedule management plan. In a schedule management plan, we make strategies, who will be involved, how we will produce network diagram, for instance, how we will assign resources. We also specify the tool and techniques involved in project time management. And then in next process, that is called define activities. In define activities, we take work breakdown structure dictionary and project scope statement, and we produce define activity list, activity attributes list and milestones list. In next process, we take all activities and we draw a network diagram. Afterwards, we find resources for our activities and we apply duration. And then finally, we create a comprehensive network diagram where we also find early start, early finish, late start, late finish and floats along with the leads and lags. So in this process, what we do? In this process, we specify and fine-tuning our project. So develop schedule is the process of analyzing activity sequence, duration, resource requirement and schedule constraint to create the project schedule. जब आप इस प्रोसेस पे काम करना शुरू करते हैं तो याद रखिएगा, द ऑब्जेक्टिव टू वर्क ऑन दिस प्रोसेस इज़ टू फाइन ट्यून योर प्लानिंग प्रोसेस. आपने नेटवर्क डायग्राम बना ली, उसके ऊपर आप मज़ीद एनालिसिस करते हैं थ्रू डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स कि किस तरह हम अपने सिस्टम को मज़ीद बेहतर बना सकें. टू वर्क ऑन डेवलप स्केड्यूल यू नीड स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान विच इज़ आउटपुट ऑफ schedule management process, and you need scope baseline. You also need activity list, activity attributes and milestone list along with the assumptions log, basis of estimates, lesson learned register, milestone list, comprehensive network diagram, project team assignments, resource calendars, resource requirement, risk register along with the enterprise environmental factors and organizational process assets. सो इस प्रोसेस में याद रखिएगा, हमने सब कुछ किया हुआ होता है. हमने इसको बेसलाइन की बेस पे नेटवर्क डायग्राम क्रिएट की हुई है, एक्टिविटीज़ लिस्ट हमने आइडेंटिफाई की हुई है, उनको एक्सप्लेन किया हुआ है इन एक्टिविटी एट्रीब्यूट्स डॉक्यूमेंट. बेस्ड ऑन दीज डॉक्यूमेंट्स हमने नेटवर्क डायग्राम भी बना दी. उसके बाद हमने उन एक्टिविटीज़ पे रिसोर्सेज भी अप्लाई कर लिए और ड्यूरेशन भी फाइंड कर ली. ये तमाम टॉपिक्स आपको मैं डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर चुका हूँ और मेरी काफ़ी वीडियोस अपलोडेड हैं. आप मेरी टाइम लाइन में प्रोजेक्ट स्केड्यूल की तमाम वीडियोस दोबारा देख सकते हैं अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है. सो लेट्स टॉक अबाउट द टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ डेवलप स्केड्यूल. द फर्स्ट टूल एंड टेक्निक इज कॉल्ड स्केड्यूल नेटवर्क एनालिसिस. इट एम्प्लॉयज सेवरल अदर टेक्निक्स सच एज क्रिटिकल पाथ, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक एंड मॉडलिंग टेक्निक्स. क्रिटिकल पाथ क्या होता है? मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि सबसे पहले यू ड्रॉ अ नेटवर्क डायग्राम, then we find number of paths of our network diagram and afterwards we apply duration to our paths और उसके बाद हम find out करते हैं कि which one is the longest one, which one is the longest path in network diagram. The longest path will be the actual project duration of your project, and then we apply different parameters like early start, early finish, late start and late finish to find floats of our activities. और फिर उसके बाद जो है जब लॉन्गेस्ट पाथ आपका हमारा निकलता है तो वो ही आपका क्रिटिकल पाथ कहा जाता है. सो स्केड्यूल नेटवर्क एनालिसिस में एक टेक्निक जो होती है यूज़, उसको कहा जाता है क्रिटिकल पाथ. दूसरी टेक्निक रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन यूज़ होती है. सो लेट्स टॉक अबाउट क्रिटिकल पाथ मेथड. क्रिटिकल पाथ मेथड इज अ स्केड्यूल नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक. It determines the amount of float or schedule flexibility for each of the network paths by calculating the earliest start date, earliest finish date, latest start date and latest finish date for each and every activity of your network diagram. लेकिन ये काम हम पहले critical path activities की जो longest path होगा उस पे अप्लाई करेंगे
और उसके बाद रिमेनिंग एक्टिविटीज़ जो क्रिटिकल पाथ की नहीं होती उन पे हम अप्लाई करते हैं। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो यू कैन वॉच माई वीडियो ऑन नेटवर्क डायग्राम। नेक्स्ट थिंग इज़ कॉल्ड रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन which is also called resource leveling. Is used when resources are over allocated. So you will also use this technique when there are time constraints, especially those assigned to critical path activities, or when you need to meet specific scheduled dates and are concerned about the resource availability. As you can see on your screen, you have activity A and activity B. एक्टिविटी ए में आप देखें टॉम और सू ये दोनों 8 आवर्स काम कर रही हैं, और एक्टिविटी बी में भी सू को आपने एक्टिविटी असाइन की है, वो 8 आवर काम कर रहा है। अब अकॉर्डिंग टू जो ये डायग्राम आपके सामने है, इसमें एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी ये दोनों एक ही टाइम पे स्टार्ट हो रही हैं, एक ही टाइम पे फिनिश हो रही हैं। और अब इसमें आप देखें यहाँ पे जो टॉम है उसका तो कोई इशू नहीं है, वो तो 8 आवर्स एक दिन में काम करेगा, लेकिन सू ने 8 घंटे या तो एक्टिविटी ए पे काम करना है और 8 घंटे आपकी एक्टिविटी बी पे भी काम करना है। और फॉर एग्जांपल टुडे इज मंडे, डे 1। अब डे 1 पे हाउ इट्स पॉसिबल फॉर सू टू वर्क ऑन 16 आवर्स। अब यहाँ पे इसको कहा जाता है रिसोर्स ओवर एलोकेटेड हो गए हैं। अब इस तरह के जब आप नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं तो उसके बाद डेवलप स्केड्यूल में हम इन चीज़ों पे फोकस करते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहाँ पे एरर्स आ रहे हैं, कहाँ पे रिसोर्सेस आपके ओवर एलोकेट हो गए हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आपका एक टीचर एक क्लास ले रहा है एक टाइम पे मंडे को सुबह 9 बजे, तो मंडे को सुबह 9 बजे वो क्लास बी नहीं ले सकता, वो एक टाइम पे एक ही क्लास लेगा। सिमिलरली एक रिसोर्स एक टाइम पे एक जगह पे एक ही काम करेगा। तो अब ये इशू है, इस तरह के एरर्स को हम रिजॉल्व करते हैं। अब नीचे आप देखें, अब यहाँ पे एक्टिविटीज़ आफ्टर रिसोर्स लेवलिंग में एक्टिविटी ए को हम लोगों ने फाइन ट्यून किया, और फिर डे 2 पे हमने शिफ्ट कर दिया एक्टिविटी बी को, और एक्टिविटी सी को हम लोग ले गए डे 3 पे। याद रखिएगा रिसोर्स लेवलिंग कभी भी क्रिटिकल पाथ जो आपकी लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन होती है प्रोजेक्ट की उसको इफेक्ट नहीं कर रहा होता। विद इन कंस्ट्रेंट, विद इन स्टार्ट डेट एंड एंड डेट ऑफ द प्रोजेक्ट वी डू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ आवर रिसोर्सेज एंड रिसोर्स लेवलिंग। हम रिसोर्सेज को लेवल कर रहे होते हैं, हम चेक कर रहे होते हैं कि कहाँ पे हमने रिसोर्सेज गलती से ओवर एलोकेट कर दिए, तो इस चीज़ को कहा जाता है रिसोर्स लेवलिंग। एंड इन डेटा एनालिसिस we have what if scenario analysis. What if scenario analysis is the process of evaluating scenarios in order to predict their effect on positive side and negative side on project objectives, such as delaying a major component delivery, extending specific engineering duration. The outcome of what if scenario analysis can be used to assess the feasibility of the project schedule under different conditions. In data analysis we have simulations. Simulation models the combined effects of individual project risk and other sources of uncertainty to evaluate their potential impact on achieving project objectives. The most common simulation technique is Monte Carlo analysis, in which risk and other source of uncertainties are used to calculate possible schedule outcomes for the total project. एक और हमारी जो टूल एंड टेक्निक है विच इज़ आल्सो कॉल्ड लीड्स एंड लैग्स। लीड्स एंड लैग्स आपके प्रोजेक्ट के नेटवर्क डायग्राम में हम ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने रूम में पेंट किया, अब पेंट करने के लिए आपने पुटीन लगाई और उसके बाद आप फ़ौरन उस पर पेंट अप्लाई नहीं कर सकते, आपको एक दिन वेट करना पड़ता है। इस चीज़ वेटिंग पीरियड को कहा जाता है लैग। ये हम ड्यूरेशन में ऐड करते हैं, ये लैग पीरियड जो वेटिंग टाइम होता है हम टोटल ड्यूरेशन में इसको ऐड कर देते हैं। उसके साथ हम एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल एक एक्टिविटी है 4 दिन ले रही है, तो अगर उसमें लैग पीरियड कोई है आप कैलकुलेट करेंगे, वो भी अप्लाई कर देंगे। वो अप्लाई करने के बाद आपकी एक्टिविटी की ड्यूरेशन 5 आ गई, तो वो आपका जो है टोटल जो 5 ड्यूरेशन होगी इंक्लूडिंग लैग पीरियड वो आप इसमें डिफाइन कर देंगे, उस सिस्टम में आप डालेंगे। लीड एक्टिविटी कहा जाता है कि जब आपकी एक एक्टिविटी 100% कंप्लीट नहीं हुई होती
तो वो 100% कंप्लीट नहीं हुई होती, लेकिन उसके बाद जो नेटवर्क डायग्राम में सक्सेसर एक्टिविटी है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं एक सर्टेन लेवल तक। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि ये एक्टिविटी जब इसमें ये 70% मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें ये सब आपने एट्रीब्यूट्स उसके डिफाइन किए हुए हैं, तो उसके बाद आप एक्टिविटी बी स्टार्ट कर सकते हैं। सो लीड्स एंड लैग्स आर रिफाइनमेंट्स अप्लाइड ड्यूरिंग network analysis to develop a viable schedule by adjusting the start time of the successor activities. Leads are used in limited circumstances to advance successor activity with respect to predecessor activity, and lags are used in limited circumstances where processes require a set period of time to elapse between predecessors and successors without a resource impact. Then we have another tool and technique which is called schedule compression. This problem can arise during project planning when management or the customer requires a completion date that cannot be met, or during the project executing when the project manager needs to bring the project back in line with the schedule baseline or adjust the project schedule for changes. Many project managers blame their sponsor or executive for unrealistic schedule, but project manager have a professional responsibility to push back, present options, and make sure the project is achievable. For instance, in this example, as you can see on your screen, you have fast tracking and you have crashing under schedule compression. Fast tracking में आपका रिस्क हाई हो जाता है और क्रैशिंग में आपकी कॉस्ट हाई हो जाती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज फास्ट ट्रैकिंग. दिस टेक्निक इन्वॉल्व डूइंग क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज इन पैरेलल दैट वर ओरिजिनली प्लान्ड इन अ सीरीज. फॉर इंस्टेंस एक्टिविटी ए थी, वो स्टार्ट हुई मंडे को, ख़त्म हुई वेडनेसडे को. एक्टिविटी बी थी, वो स्टार्ट होनी है थर्सडे को, ख़त्म होगी वो सैटरडे को. तो एक एक्टिविटी जब ख़त्म हुई तो दूसरी एक्टिविटी शुरू हुई. इसको कहा जाता है सीरीज़. लेकिन चूंकि अब आपके पास टाइम शॉर्ट है, आप चाहते हैं कि काम आपका 3 दिन में हो जाए रादर देन 6 डेज में, तो हम क्या करते हैं, हम दोनों एक्टिविटीज़ को जो क्रिटिकल पाथ की थी उनको पैरेलल ले आते हैं. जब हम पैरेलल ले आएंगे तो दोनों एक्टिविटीज़ मंडे को स्टार्ट हो रही हैं और दोनों एक्टिविटीज़ वेडनेसडे को ख़त्म हो रही हैं. तो याद रखिएगा, फास्ट ट्रैकिंग में आप सीरीज़ से हटा के पैरेलल में अपनी एक्टिविटीज़ को तब लाएंगे जब उन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप जो है आपका मैंडेटरी ना हो, बल्कि आपका सॉफ्ट लॉजिक हो, आपने खुद रखा हुआ हो बेस्ड ऑन द रिसोर्सेज. लेकिन अब क्योंकि आपको प्रॉब्लम आ गई है, आपके स्पॉन्सर आपको कहते हैं कि काम मुझे 6 दिन की बजाय नहीं 3 दिन में करके दें, तो देन वी यूज़ फास्ट ट्रैकिंग टेक्निक. सो दिस टेक्निक इन्वॉल्व डूइंग क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज इन पैरेलल. दोनों को एक साथ आप शुरू करेंगे दैट वर ओरिजिनली प्लान्ड इन अ सीरीज. फास्ट ट्रैक ऑफन रिजल्ट्स इन रीवर्क, यूजुअली इंक्रीज रिस्क एंड रिक्वायर मोर अटेंशन टू कम्युनिकेशन. हमेशा याद रखिएगा, जब आप एक्टिविटीज़ को पैरेलल में लाएंगे आप इस पर डिफरेंट रिसोर्सेज पर अप्लाई करेंगे. जब डिफरेंट रिसोर्सेज आपके अप्लाई होंगे, हो सकता है वो ट्रेन ना हो सकता है वो उस तरह की उनकी अंडरस्टैंडिंग ना हो जो हमने ओरिजिनली प्लान किया हुआ था. तो इसमें आपका रिस्क हाई हो जाता है और इसमें एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपको मेक श्योर करना होगा कि आपकी तमाम जो डिलीवरेबल प्रोड्यूस हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन हो. कम्युनिकेशन आपकी बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ जाती है. और अनदर टूल एंड टेक्निक में हमारे पास जो आता है उसको क्रशिंग कहा जाता है. क्रशिंग में हम करते क्या हैं कि दिस टेक्निक इन्वॉल्व मेकिंग कॉस्ट एंड स्केड्यूल ट्रेड ऑफ एनालिसिस. आपकी जो प्रोजेक्ट में रिमेनिंग एक्टिविटीज़ होंगी उन तमाम रिमेनिंग एक्टिविटीज़ को आप उठाएंगे और उस पे एनालिसिस करेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल एक्टिविटीज़ हैं आपकी, उसमें ड्यूरेशन आपने कम करनी है तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी. तो कॉस्ट किस एक्टिविटी की ज़्यादा बढ़ रही है, किस एक्टिविटी कम बढ़ रही है, तो आप एनालिसिस करते हैं. लाइक आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके सामने एक्टिविटी जे है, के है, एन है, एल है और एम एक्टिविटी है. अब एक्टिविटी में आप चेक करें, इसका जो स्टैंडर्ड टाइम आपके सामने आ रहा है वो आपका 12 डेज आ रहा है, 8 डेज आ रहा है, 2 डेज आ रहा है, 5 डेज है, 8 है. जो आपकी एक्टिविटी जे है वो नॉर्मली 14 डेज में कंप्लीट होगी. जो एक्टिविटी के है वो 9 डेज में कंप्लीट हो रही है ओरिजिनली प्लान में. एक्टिविटी एन है वो 3 डेज में कंप्लीट हो रही है. एक्टिविटी एल 7 डेज में कंप्लीट हो रही है. एक्टिविटी एम जो है 11 डेज में कंप्लीट हो रही है. अब आपने एनालिसिस किया और आपने कोशिश की कि देखते हैं कि ये एक्टिविटी जे 14 डेज में कंप्लीट हो रही है, ये अगर इस पर हम क्रैशिंग अप्लाई करें, यानी इस पर हम रिसोर्सेज बढ़ा दें या नाइट शिफ्ट बढ़ा दें, तो कितने दिन हम बचा सकते
चलते हैं, तो इसमें मैक्सिमम आप 12 डेज में इसको ले आए हैं। अब ये एक्टिविटी आपकी मैक्सिमम 12 डेज में कंप्लीट हो रही है। आपने कितने दिन बचाए टाइम सेविंग में, आप देखें 2 लिखा हुआ है। फिर एक्टिविटी के में 9 की बजाय आपने एक्टिविटी के में 8 डेज में आप कंप्लीट करें, आपका 1 दिन बच रहा है। एक्टिविटी एन में आपके 3 दिन नॉर्मली प्लान थे, अब आपने इस पर क्रशिंग अप्लाई की, 2 डेज में ये कंप्लीट हो रही है, 1 दिन बच रहा है। अब एल एक्टिविटी को आप देखें, आपके 2 दिन बच रहे हैं, 5 डेज में आप कंप्लीट होगी। एक्टिविटी एम 11 डेज में थी, अब 8 डेज में हो गई है, 3 दिन आपके बच रहे हैं। अब यहाँ पे एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपका काम ख़त्म नहीं होता। एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर अब आप क्या करेंगे, आप इसकी कॉस्टिंग करेंगे कि अगर एक एक्टिविटी जे है फॉर इंस्टेंस 2 दिन बच रहे हैं, तो जब वो 2 दिन आपके सेव हो रहे हैं तो ओरिजिनली प्लान ये थी $10,000 में, लेकिन 2 डेज में आपको 14,000 कॉस्ट आ रही है, यानी 4,000 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। फिर सिमिलरली आप देखें एक्टिविटी के में आप 1 दिन सेव कर रहे हैं। दिस एक्टिविटी वाज ओरिजिनली प्लान्ड $17,000 बट $17,000 बट आफ्टर अप्लाइंग क्रशिंग 1 दिन तो आपने बचाया, लेकिन 1 दिन की कॉस्ट आपको $10,000 आ रही है। तो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर अब आप क्या करेंगे, आप कौन सी एक्टिविटीज़ को उठाएंगे, क्या 10,000 वाली उठाएंगे या फिर आप 4,000 वाली उठाएंगे। अब एक्टिविटी एन में देखें, एक्टिविटी एन में भी आपका 1 दिन बच रहा है क्रशिंग में, लेकिन उसकी कॉस्ट आपको $100 जो आपकी $1,000 आ रही है, ऊपर वाली एक्टिविटी के में 10,000 आ रही है। तो आप एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर तमाम एक्टिविटीज़ की क्रशिंग करते हैं, उसका कॉस्ट एनालिसिस करते हैं, और जिस कॉस्ट एक्टिविटी को ड्यूरेशन कम करने में सबसे कम आपकी कॉस्ट का इशू आएगा, खर्चा आएगा, उसी एक्टिविटी को आप सेलेक्ट करेंगे फॉर क्रशिंग। फॉर एग्जांपल आपके स्पॉन्सर कहते हैं कि 2 डेज अर्ली मुझे कंप्लीट करके दो, अगर वो मुझे कहेगा तो मैं कौन सी एक्टिविटी को उठाऊंगा, मैं उन एक्टिविटीज़ को उठाऊंगा जिनकी कॉस्ट जो है कम से कम आ रही है। तो एक एक्टिविटी आपकी जो है यहाँ पे एन हो जाएगी, दूसरी एक्टिविटी आपकी एल हो जाएगी अगर आप 3 डेज सेव कर रहे हैं, क्योंकि यही आपका है। या फिर इससे ऊपर आप देखें एक्टिविटी जे है, वहाँ पे 4,000 आपको बच रहे हैं, तो आप कौन सी एक्टिविटी चूज़ करेंगे, एल चूज़ करेंगे या जे चूज़ करेंगे। ऑब्वियसली हियर इन दिस एग्जाम्पल यू विल चूज़ एक्टिविटी जे विच विल कॉस्ट यू एक्स्ट्रा $4,000 एंड विच विल सेव 2 डेज, एंड एक्टिविटी नंबर एन जिसमें आपका 1 दिन बच रहा है लेकिन आपको कम से कम $1,000 आप पे स्पेंड करें, तो टोटल आपके 3 डेज में $5,000 आपके एक्स्ट्रा लगेंगे। और इस तरह से हम जो है प्रोजेक्ट में क्रशिंग करते हैं। सो इन फास्ट ट्रैकिंग व्हाट वी डू, वी टेक आवर नेटवर्क डायग्राम और दोस एक्टिविटीज़ विच आर स्केड्यूल इन सीक्वेंस्ड, उनको हम पैरेलल में चलाते हैं, लेकिन बाकी हम कुछ नहीं करते, ड्यूरेशन वगैरह पे हम नहीं काम करते। इन स्केड्यूल कंप्रेशन, इन क्रशिंग आप अपने डेज कम कर लेते हो, लेकिन आपकी दूसरी तरफ कॉस्ट बढ़ जाती है। तो दिस इज कॉल्ड स्केड्यूल कंप्रेशन। We have another tool and technique which is called Project Management Information System. Project Management Information System include scheduling software that expedites the process of building a schedule model by generating start and finish dates based on inputs of activities, network diagram, resources and activity duration. So what we do, we take any software like Microsoft Project, like Primavera, और उसमें हम अपना सारा डेटा डाल देते हैं। लाइक गैंट चार्ट में मैं जाऊंगा और वहाँ पे मैं अपनी एक्टिविटीज़ डालूंगा, ड्यूरेशन अप्लाई करूंगा, स्टार्ट डेट एंड डेट फिनिश करूंगा, और मैं अपने प्री डिस्कसेस वगैरह सारे डाल दूंगा। मेरे लिए सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली मेरी फ्लोट्स और ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके मुझे दे देगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या आप वो चीज़ सीखना चाहते हैं तो मेरी टाइमलाइन में प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पे आप वो तमाम डिटेल्स प्रोजेक्ट 2019 की वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं, आप उन तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। We have another tool and technique which is called Agile Release Planning. Agile Release Planning provides a high-level summary timeline for release schedule, typically 3 to 6 months, based on the product roadmap and the product vision for the product's evaluation. Agile Release Planning also determines the number of iterations or sprints in the release and allows the product owner and team to decide how much needs to be developed and how long it will take to have a reliable and releasable product based on business goals, dependencies and impediments. So in this example you can see आपकी iterations होती हैं,
आप अपने प्रोजेक्ट को फॉर एग्जांपल आप टोटल 10 या 15 आइट्रेशंस में कंप्लीट करना चाहते हैं, तो हर आइट्रेशन की फिर आगे सब डिविजन्स होती हैं और उसकी डिटेल्स होती हैं। तो इस चीज़ को कहा जाता है एजाइल रिलीज प्लानिंग। अब let's talk about the outputs of develop schedule process. The first output is called schedule baseline. Schedule baseline is the approved version of a schedule model that can be changed only through formal change control procedures, and it is used as basis for comparison to actual results. It is accepted and approved by the appropriate stakeholders as the schedule baseline with baseline start dates and baseline finish dates. During monitoring and controlling, the approved baseline dates are compared to actual start and finish dates to determine if variances have occurred. The schedule baseline is a component of project management plan. So baseline में what we do, we take formal approval from the project sponsor or any approving body. जब हम उसका अप्रूवल ले लेते हैं, देन दैट बिकम्स योर बेसलाइन, चाहे वो स्केड्यूल बेसलाइन हो, कॉस्ट बेसलाइन हो या स्कोप बेसलाइन हो। बेसलाइन का मतलब याद रखिएगा, बेसलाइन उसको कहा जाता है जब आप उसका फॉर्मल अप्रूवल ले लेते हैं। और आफ्टर द अप्रूवल एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर यू डू नॉट हैव एनी अथॉरिटी टू मेक चेंजेस इन योर प्रोजेक्ट डायरेक्टली। अकॉर्डिंग टू PMI you take requirement request from the stakeholders or anyone involved in your project, और उसके बाद after formal evaluation you forward that change request to change control board, and whatever change control board decides you will share the outcomes and final results with the stakeholder कि change control board ने क्या आपको अप्रूवल दी है। तो स्केड्यूल बेसलाइन हो, कॉस्ट बेसलाइन हो या स्कोप बेसलाइन हो, बेसलाइन कहा जाता है जब आप उसको डॉक्यूमेंट को फॉर्मली अप्रूव करवा लेते हो। दूसरा इसकी आउटपुट, मेजर आउटपुट जो होगी वो कंप्रीहेंसिव नेटवर्क डायग्राम होगी, जो आप पढ़ चुके हैं, कंप्रीहेंसिव नेटवर्क डायग्राम, और आपका प्रोजेक्ट उसी की बेस पे चलेगा। सो द प्रोजेक्ट स्केड्यूल इज एन आउटपुट ऑफ schedule model that represents linked activities with planned dates, duration, milestones and resources. Then we have schedule data, another tool and output of develop schedule process. The schedule data for the product schedule model is the collection of information for describing and controlling the schedule. The schedule data includes at minimum the schedule milestones, schedule activities, activity attributes, documentation and all identified assumptions and constraints. And we also produce project calendars. Project calendars identifies working days and shifts that are available for schedule activities. It distinguishes time period in days, part of days and that are available to complete schedule activities from time periods and that are not available for work. A schedule model may require more than one project calendar to allow for different work periods for some activities to calculate the project schedule. Another outputs are any kind of change request. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में हम डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करते हैं, फॉर एग्जांपल एक्टिविटी लिस्ट, एक्टिविटी एट्रीब्यूट्स, माइलस्टोन लिस्ट। आप जब उन फॉर्म्स को देखेंगे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं पिछले वीडियोस में, उसमें काफ़ी एट्रीब्यूट्स होते हैं जो उस टाइम पे एम्प्टी हो जाते हैं, बिकॉज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस आर आइटरेटिव। आप बहुत से काम करते जाते हो, बहुत से काम छोड़ते जाते हो, फिर जब आपका प्रोजेक्ट बढ़ता जाता है, दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव इलैबोरेशन, तो आप वो वापस आके पुराने डॉक्यूमेंट्स को भी फिर अपडेट कर रहे होते हो। इसलिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को आप अपडेट करोगे एंड डॉक्यूमेंट फाइल्स जो होंगी जिसमें एक्टिविटी एट्रीब्यूट्स, एक्टिविटी माइलस्टोन्स, इन डॉक्यूमेंट्स वगैरह को भी आप अपडेट कर रहे होंगे। तो आई होप को आपको डेवलप स्केड्यूल जो प्रोसेस है बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कंट्रोल स्केड्यूल विच इज़ पार्ट ऑफ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस ग्रुप, उसको मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। और उसके बाद फिर टाइम मैनेजमेंट के जितने भी हमारे प्रोसेसेस हैं, प्लान स्केड्यूल मैनेजमेंट, डिफाइन एक्टिविटीज़, सीक्वेंस एक्टिविटीज़, एस्टिमेट एक्टिविटी ड्यूरेशन, डेवलप स्केड्यूल एंड कंट्रोल स्केड्यूल, ये हम सारा जो नॉलेज एरिया है PMI का वो इंशाल्लाह हम लोग कंप्लीट कर चुके होंगे नेक्स्ट वीडियो तक। तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।